সেলিব্রেটেড অথর, কোট আনকোট আর্মি ব্র্যাট, তার কানেকশন রয়েছে বলিউডের একজন অত্যন্ত নামজাদা অভিনেতার সঙ্গেও, নাসিরুদ্দিন শাহ তার সম্পর্কের। তার বাবা ছিলেন ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ, তারপরেও তাকে বারবার শুনতে হয়েছে তিনি নাকি অ্যান্টি ন্যাশনাল। তিনি বিধানসভার পর বালিগঞ্জের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি বাম মনোনীত প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। আজ আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন সাক্ষাৎকারে, তার নতুন করে আর কোনো ইন্ট্রোডাকশন দরকার নয়। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতায় যিনি কড়া টক্কর দিতে মাঠে নামছেন বামেদের পক্ষ থেকে, তিনি আর কেউ নন, সায়রা শাহ হালিম। সায়রা জি, ওয়েলকাম টু এনকেটিভি বাংলা। নমস্কার। সবাই ভিউয়ার্সকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। সায়রা জি, আপনার বাংলাটা একটু কাঁচা, তাই না? হ্যাঁ, আমি বলতে পারি, আমি লিখতে পারি, আমি অনেক চেষ্টা করছি, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। আমি কলকাতায় জন্মেছি। আমার বাবা একটু আর্মি অফিসার ছিল, তো তারপরে আমি পুরো ভারত ঘুরেছি, এভরি 2 ইয়ার্স আলাদা আলাদা সিটিসতে। আমার স্কুলিং বোর্ডিং স্কুলতে ছিল। আই ওয়াজ স্টাডিং ইন লরেন্স স্কুল লাভডেল। তারপরে আমার বাবার পোস্টিং ছিল রিয়াদ, সৌদি আরেবিয়া। আমার বাবা একজন মিলিটারি অ্যাটাশে, হি ওয়াজ রিপ্রেজেন্টিং ইন্ডিয়া ইন সৌদি আরেবিয়া। তো নানা রকম টান রয়েছে। শাসক দল মানে তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা বিজেপি তো বলতেই পারে বহিরাগত ক্যান্ডিডেট, বাংলাটাই বলতে পারে না, বাংলা লোকের কথা কি বলবো? আমি পড়তে পারি, আমি লিখতে পারি, বলতে পারি। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल। जैसे मेरा जो वो रहा है स्कूलिंग, वो बोर्डिंग स्कूल में रहा है। कॉलेज भी बोर्डिंग कॉलेज में था। जैसे डिफेंस के बच्चे होते हैं, बहुत कॉस्मोपॉलिटन एक अपब्रिंगिंग होती है, तो वैसे इट वॉज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन अपब्रिंगिंग। अच्छा, तो कभी आपको सुनने में आया है क्या, ये सवाल कभी रेज हुआ है कि बंगाल का इलेक्शन में सायरा शाह हलीम खड़ी हो रही है और उनको बांग्ला नहीं आता है? पिछले बार मुद्दा बना था। people অনেক ট্রোলিং হচ্ছে, কিন্তু মোটামুটি আমাকে লোকটা এখানে ভালোবাসে, बिकॉज व्हाट दे आर सीइंग इज दैट आई एम मेकिंग एन एफर्ट। सो जो एफर्ट कोई करता है वो अप्रिशिएट करते हैं सब लोग। और यहाँ पे आई एम वेयरिंग माई कोट एंड कोट आउटसाइडर टैग विद लॉट ऑफ प्राइड, दो आई एम नॉट एन आउटसाइडर। আমি কলকাতার মেয়ে, আমি কলকাতার বৌমা। I got married very young and I came to Kolkata, so you know I have a big identity। like फौजी लोगों का जो होता है, फौजी बच्चों का एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता, बट कोलकाता हैज़ गिवन मी दैट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो আমার পরিচয় তো এই কলকাতায়। নিন্দুকেরা বলছেন হাসিম আব্দুল হালিম সাহেবের পুত্রবধূ, তাই খুব সহজেই টিকিটটা পেয়ে গেছেন, তাই কি? না না না, আমি অনেক বছরে আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে ছিল, উইপ্রো, ইনফোসিস, ওয়েবল, নানা রকম, you know, like I was a senior trainer, training manager, so I've spent 17 years in the corporate sector. তারপরে আমি অ্যাক্টিভিজমতে আমি ঢুকেছি, কোট অ্যান্ড কোট 2014 তে, যা তানাশাই একটু গভর্নমেন্ট जो नाना रकम policies, very kind of fascist policies that were happening, तब मैंने सोचा that आवाज़ उठानी चाहिए। so I've been writing columns for various publications, India Today थे। आपको एंटी नेशनल क्यों बोल रहे थे लोग? एंटी नेशनल कुछ नहीं बोल रहे, जो anyone who is anti right is an anti national, so that is what, if you are against fascist regimes you become quote unquote anti, you know। चलिए हम हिंदी में बाकी इंटरव्यू करते हैं, आपको भी आसानी रहेगा, हमारा दर्शक भी समझ जाएंगे। आवाम लोग आपको क्यों वोट देंगे? आवाम लोग ये जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं खड़ी हुई हूँ, कोलकाता साउथ, एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन जगह है, और वहाँ पे जो है जो युवा शक्ति है वो बहुत एस्पिरेशनल है। सो दे वांट टू सी समवन जो ज़मीन के लोगों के साथ काम करे, हु इज़ वर्किंग ऑन द ग्राउंड, और दे वांट देयर पार्लियामेंटेरियंस टू एम्पलीफाई द वॉइसेस। के पार्लियामेंटेरियन कोनो जगह देखते पारे ना, तो उनकी एडवांटेज। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा ही क्लासी हो। नहीं, क्लासी मासी नहीं हो, क्लासी हो। नहीं, मासी भी हूँ, क्लासी भी हूँ। आप देख लीजिए अभी व्हाट वी आर डूइंग डोर टू डोर, कौन सा यहाँ पे नेता आके डोर टू डोर जा रहा है स्लम एरिया में?
पिछले बार भी बालीगंज में मैंने किया, दिन रात किया, डोर टू डोर उनकी मुसीबतें समझी। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि नाना रकम प्रॉब्लम আছে কি রকম সলভ করতে হবে, ইউ নো, এটাই তো ভাবতে হবে कि व्हाट डू यू डू। पर लोग कह रहे हैं कि सायरा शाह अलीम ये कहाँ से लेफ्ट में आ गई, ये तो एरिस्टोक्रेट है कोट एंड कोट, देखिए ये पार्टी सब का इमेज के साथ नहीं जा रहा है। देखिए ये सब बाइनरीज बनी हुई हैं, तो उसका अभी बाइनरीज अगर बनी हुई हैं तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आई मीन आर लड़ोगे कैसे आप? नहीं लड़ रहे हैं अभी भी। टुडे इफ आई टेल यू आई लिटरली वॉकड फॉर समथिंग लाइक 13-14 কিলোমিটার্স। সকাল সকাল আমি বালিগঞ্জ ছিল, তারপরে আমি বিহালাতে ছিল। তো আসান নয়, ইট ইজ আ ভেরি টাফ ব্যাটল। আই মিন বিইং আ ওম্যান, and whether people like it or not, there is this minority tag attached with it. তো এটা দুটো বাইনারি এখানে চলছে, এটা মাইনরিটি কমিউনিটিতে আছেন একটু ওম্যান, বাট বালিগঞ্জতে যা চুনাव ছিল ওটার বাইনারি we have broken. आपने दिखा दिया था कहीं बालीगंज में कि भाजपा से ज्यादा वोट सीपीएम ले जा सकता है, वो ट्रेंड इस बार सेकंड से फर्स्ट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए उस टाइम लोग कहते हैं हार गए। मैं कहती हूँ देखिए कोई रेस, अगर कोई रेस में भाग लेता है, अगर उसको गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिलता है, जिसको सिल्वर मेडल मिलता है वो कोई ये नहीं कहता कि हार गए, बोलेगा ही इज अ सिल्वर मेडलिस्ट। तो अगर मैं एज अ फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट अगर मैं सेकंड आई, और वो भी इतना टफ बैटल में विद हैवी वेट गाय लाइक विधानसभा में तो कोई एक ही जा सकता है, सिल्वर मेडल का वो तो तो जगह नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक क्रिएट दिस काइंड ऑफ एनालॉजी सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। सो ये एनालॉजी मैंने उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि अगर किसी को गोल्ड मेडल मिलता है शाबाशी मिलती है, वेरी गुड, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट ऑल्सो यू कैरी बैक अ सिल्वर। तो यहाँ पे जो है अगर ये रिगिंग थोड़ी बहुत जो यू नो दे एलिगेशंस ऑफ रिगिंग, अगर ये मतलब रिगिंग हुआ था बाई इलेक्शन बिल्कुल में? बिल्कुल हुआ था। ये इट्स अ ओपन थिंग, लाइक दे वर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में मुद्दा उठाए थे? मुद्दा उठाया, we've written a letter, we've addressed it that there's like this happening. I've caught people red-handed on the camera. मैंने कैमरा में ये कौन बकायदा थे? सीपीएम ये टीएमसी वाले थे, भाजपा वाले थे? ये मैं ऐसे बोलूँगी नहीं कौन थे, बट रिगिंग हुई है, डेफिनेटली रिगिंग हुई है। मेरे कैंपेन्स बकायदा स्टॉप हुए गए, 7 कैंपेन केम आउट इन नेशनल मीडिया। तो कहीं लोगों को डर लग रहा था कि भाई हु इज दिस ग्रीन हॉर्न, यू नो, जो आकर एकदम बालीगंज में छा गए और बाबुल सुप्रियो को भी टक्कर दे रहे हैं। बालीगंज को तो लाइक इन द सेंस बीजेपी को तो एकदम इररेलेवेंट कर दिया। दे गॉट 12,000 वोट्स, हम लोगों के वोट्स मोर देन 32-33,000 आया। तो इट वाज नॉट इजी, मैं कह रही हूँ आसान नहीं था। जो सायरा शाह अलीम बालीगंज में छा गए थे, वो इस बार पूरा साउथ कलकत्ता में छा जाएंगे? बहुत यहाँ पे রৌনক बनी हुई है। আমাদের কমরেডস অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছেন एंड पार्टीज रियली गेट अप दिस टाइम। इस टाइम बहुत तैयारी हो रही है और बहुत प्लानिंग हो रही है। तो আমি অনেক আশাবাদী এই सीट अवश्य लेफ्ट ही जीतবে। साउथ कलकत्ता, हम लोग बोलते हैं साउथ कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन है, साउथ कलकत्ता पॉश है, साउथ कलकत्ता নিউ কলকাতা কোট অ্যান্ড কোট। আমি মানি না, অন্যরা মানে, আমি আদ্যপান্ত মধ্য কলকাতার ছেলে এবং আমার কাছে এখনো কলকাতা মানে মধ্য কলকাতা। You can straddle both the worlds। हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि साउथ कलकत्ता पॉश है और उसी लिए पॉश कोट एंड कोट सायरा हलीम को मैदान में देखिए उतारा गया भैया है। दोनों हैं, पॉश भी है और डाउन ट्रॉडन भी है, वहाँ पे गरीब लोग भी हैं, हर तबके के लोग हैं वहाँ पे। दे आर हाई राइजेस की बिल्डिंग भी है और छोटे छोटे स्लम एरियाज भी हैं। एक पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन को देखना होगा, लाइक हाउ डू वी, व्हाट डू वी डू। আমি एक तो सोच चिंता करते हो बिकॉज यहाँ पे युवा शक्ति का क्या होगा। दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ, दे हैव ड्रीम्स। कहीं साउथ कलकत्ता में भी एक पोलराइजेशन आ चुका है, धर्म का पोलराइजेशन। अभी जो सीपीएम है या अभी जो लेफ्ट है, वो क्या अभी भी रिलीजन को पॉइजन समझते हैं? नहीं, ये लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। सो लेफ्ट ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, मतलब एवरीवन कैन प्रैक्टिस देयर फेथ बट इन द पर्सनल डोमेन। कोई ऐसा नहीं है कि इट इज अ मैंडेट टू बिकम यू नो नॉन बिलीवर। मतलब अगर एक वन वर्डर में बोले तो एक लाइन वन लाइनर अगर है तो
ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। Yeah, it ममता is your बनर्जी भी बोल रही personal, है। it's your personal belief as long as you're not like making it like a state subject. जैसे भाजपा क्या कर रही है, उसको एकदम state में ला रही है, they're bringing it out in the open. और পুরো সময় তো দুর্নীতি করে টিএমসি এবং BJP সিপিএম, সরি বিজেপি, সরি। সো একটা তো করাপশন করে, একটা সাম্প্রদায়িকতার শাসন করে। সো হিয়ার we are giving the people একটা third alternate. না এবার ধরুন আপনি যে কথাটা বলছেন, आप जो बोल रहे हैं कि धर्म जिसका जिसका, त्योहार जो है वो सबका, त्योहार ये सबका सेम है। थिंग ममता बनर्जी भी बोल रही है, फिर क्यों इंडिया ब्लॉक से निकल गए आप लोग? नहीं, बात ये है ना कि इंडिया ब्लॉक से ममता बनर्जी की सरकार पहले ही ऐलान कर ली अपने कैंडिडेट्स को। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज ऑफ इम्पेशंस। अगर कोई बातचीत हो या कुछ बाकी जो विरोधी दल हैं, you know, talk to them and negotiate. But CPM was very clear that we will not have a tie-up with TMC. अनेक कॉमरेड्स मारा गए थे। पर वैसे देखे तो अगर आप लोग कांग्रेस का साथ टाई अप कर रहे हैं, 60 और 70 का दशक में तो आप लोग इन्हीं को श्रेणी शोत्तु बोलते आए हैं। कितने लोग कांग्रेस के भी अत्याचार थे, बहुत सारे कॉमरेड्स वहाँ भी मर चुके हैं। नहीं, बट तो उनसे हाथ मिला तो सकते ये हैं, तो तृणमूल से फिर नहीं, ये बात तो फिर वैसी हो जाएगी ना बीजेपी की तरह। 1526 व्हाट हैपेंड, और वहाँ पे मुगलों ने ये ऐसे करा तो हम अब ऐसा करेंगे। तो you can't like talk about which ruler did what like in medieval history. इतिहास में ज्यादा दूर नहीं है, सिद्धार्थ शंकर राय और ज्योति बसु का टाइम का बात है। नहीं, see, I was not in the political arena, तो आमी एटा it will be very difficult for me to talk on that because I think it's best to talk on about what I've seen. चलिए फिर संदेश खाली। जी बिल्कुल। संदेश खाली में जिस तरीका से बयान सामने आ रहा है कि वहाँ पे विमेन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, एक महिला कैंडिडेट है आप, ये मुद्दा है आपका? এই লড়াই প্রত্যেক মা বোনের লড়াই। संदेश खालीर माँ बोन, whoever is the victim, हम उनके साथ खड़े हैं। बात ये है, अगर FIR नहीं दर्ज हुआ लेकिन अगर टेस्टिमनी दी गई है, so we have to treat it as a gospel truth. Why should we cast aspersions on a woman just because she doesn't want to show her face? এতগুলো women একটু allegations দিয়েছেন, ঠিক করার প্রোব করতে হবে what is the case, and we have to be very very pragmatic. आपको लगता है कि ये संदेश खाली तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनाव है, एक चैलेंज है, और कहीं यही तृणमूल कांग्रेस का मौत की घंटी बजाएगी? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख लीजिए, CPM एकमात्र पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं की। देखिए, पहला स्थान पे आता है भाजपा, दूसरे स्थान पे आता है तृणमूल कांग्रेस, और बहुत ही ताज्जुब की बात है दैट तीसरी स्थान पे आता है कांग्रेस। कांग्रेस वो भी नेशनल पार्टी है, तृणमूल भी है, बट उसकी जगह केवल बंगाल में है ना। हाउ डू दे हैव दी सो मेनी एंड वेयर इज द फंडिंग कमिंग फ्रॉम? ये अभी এটা তো জিজ্ঞাসা করতে হবে না, फंडिंग কে দিচ্ছেন, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, टू we'll have to मेल का नाम सामने आ रहा है, मेघना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और कहा जा रहा है कि डोनेशन के एक ही दिन के बाद इन्हें 14,500 का रेलवे का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कहीं आपको लग रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा इशू है? बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, तो वही है ना, तो ये जो है एक डिफ्लेक्ट करने का एक प्रयत्न हो रहा है कि अगर ये बात का खुलासा हो रहा है, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, सो व्हाट इज बीजेपी ट्राइंग टू डू? इट ऑलवेज डिफ्लेक्ट्स। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो दिखा दो JNU में एंटी नेशनल्स बैठे हुए हैं, बन रहा है पिक्चर जहांगीर नेशनल वही तो मैं कह रही हूँ ना, वही जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। सो व्हाट इज दैट? इसको डिफेम करने का एक प्रयत्न है कि जहाँ बुद्धिजीवी पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी तानाशाही सरकार हो, बट यू नीड टू डिफेम देम एंड यू नीड टू काइंड ऑफ एलिज ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड एलिगेशंस। साउथ कलकत्ता का जो लोग है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है,
काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन है। यहाँ कोई एक धर्म प्रधान नहीं है, यहाँ एक मिक्सचर है, अमलगमेशन है। और कहीं तो ऐसे भी है जो कलकत्ता के बाहर से, वेस्ट बंगाल के बाहर से आके यहाँ बरसों से बसे हुए हैं, सदियों से बसे हुए हैं, वो भी है। सो एक कॉस्मोपॉलिटन, आपका एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। आप फिट बैठती है इस कॉस्मोपॉलिटन नेशन में? देखिए, I don't want to like kind of praise myself, but I believe नहीं, आज तो सबको ही कर रहा है। अच्छा, अपना सब लोग कर ढोल रहे हैं। खुद अच्छा, ही अपना बजा ढोल। रहा है। अच्छा, तो मैं तो आपने अगर इजाजत दे दी ढोल पीटने की, मैं भी ढोल पीट लेती हूँ। I think I am very cosmopolitan. Amar Baba 71 war hero. Exactly. Okay, and he was in Longewala, and he won the 71 war that created Bangladesh. तो being আমার বাবা আর্মিতে ছিল তো, and I have been brought up all over India, so I don't think anyone can be more cosmopolitan than me, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है is more broad based than thing, but at her heart I'm a very Kolkata, very Bengali girl, Kolkata girl, yeah. बेश, माइनॉरिटी वोट्स लेफ्ट में आएंगे इस बार, या भाजपा जो बोल रहे हैं सबके साथ सबके विकास, भाजपा का डिमांड है, उनका चैलेंज है कि मुसलमानों के लिए भाजपा ने जितना किया है आज तक ना सीपीएम किया है, ना तृणमूल किया है, ना कांग्रेस किया है। देखिए, वो बोलने की बात है। अब आप बोल रहे हैं जो नीतियां आ रही हैं, तो ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं इतने फलाने करोड़ों का ये इतना वो हुआ है, उपलब्धि हुई है। उपलब्धि हुई है क्योंकि वो नागरिक हैं देश के, इस वजह से उपलब्धि हुई है। लेकिन आप एक तरफ से डरा भी रहे हैं, कभी लिंचिंग हो रही है, कभी आप बुलडोजर चला रहे हैं, कभी बोल रहे हैं मैं एनआरसीसीए लागू करूंगा। आप जो इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं, यू आर पुटिंग देम इन अ कॉर्नर। अब रोज अगर आप किसी को पीटेंगे बोलेंगे नहीं हमने इतना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इट, बिकॉज ये सामने हम ही नहीं बोल रहे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के नहीं लोग बोल रहे हैं, एनी इंटेलिजेंट पर्सन कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। आपको क्या लगता है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस वो भी एंटी सीए एक स्टांस ले रहा है, लेफ्ट ने ऑलरेडी एंटी सीए स्टांस ले लिया, लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के सीपीएम में क्यों वोट डालेंगे? देखिए इल्माज जी, बात यह है कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असाइड्स महुआ मोइत्रा और प्रॉब्ली 1 और 2 पीपल, दिखने को कहाँ मिल रहे हैं? कौन आवाज़ दे रहा है एनआरसीसीए को? अब लोग, चलिए आपने महुआ मोइत्रा को क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट, आई डोंट नो अबाउट द एक्यूजेशंस पार्ट, बट एज अ वुमन आई एडमायर दैट वो आवाज़ तो उठाती अच्छा, साली घोष, शी इज आल्सो गुड, शी इज आल्सो गुड, या डेफिनेटली। तो साउथ कलकत्ता में आपको क्या लगता है, आपका चुनावी क्या क्या हर्डल्स है? चुनावी हर्डल्स ये हैं कि ये बहुत बड़ी एरिया है। पहले मैं बालीगंज से लड़ी थी, यहाँ पे 7 एमएलएज हैं, 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं। तो यहाँ पे जो है एक नैरेटिव को चेंज करना होगा, वेयर पीपल नो दैट लेफ्ट इज हियर, कि अभी लेफ्ट मरा नहीं है, लेफ्ट जिंदा है। तो लोग तो दूरबीन से देख रहे थे लेफ्ट को। हाँ, पहले तो दूरबीन से देख रहे थे। लगेगा इस बार? नहीं, दूरबीन नहीं लगेगा, अभी तो छा गए ना, हर जगह लाल झंडे अभी लहरा रहे हैं। कहीं भी आप जाएंगे साउथ कोलकाता में, हर जगह लाल झंडे लहरा रहे हैं। पार्टीज ऑल्सो वेरी अपबीट, वो भी एकदम उत्साहित हो गई हैं कि चलिए अभी बालीगंज से ये ऑलमोस्ट जीत गई थी, अभी यहाँ से जिता देते हैं। तो एक वो उनका एक सेंटिमेंट है। एक टाइम था जब सच्ची में अगर सीपीएम पार्टी का कोई बोलते थे कि इनको यहाँ से जिता देते हैं तो वो मान ही लेते थे, वो जीत ही जाएगा। पर वो परंपरा आज भी है क्या? लेफ्ट का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी है कि वो बोलेंगे जिता देंगे और जीत जाएंगे? एक दौर था कि डिमोरलाइज हो गए, और उतार चढ़ाव हर पार्टी में होता है, हर राजनीतिक दल में होता है। दे आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। एक दौर था जब सीपीएम सत्ता में थी, अब दौर चल रहा है पिछले 11-12 से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। तो अभी लेफ्ट के बुरे दिन हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जब लेफ्ट उठेगी तो समय तो लगेगा ना। वी हैव सीन द रिजल्ट्स इन वेरियस बाय इलेक्शन, पंचायत इलेक्शंस में भी आप देखिए वोट शेयर बढ़ा है। एक तो टाइम लगबे, किंतु लाल फिरबे, अवश्य फिरबे, और आसबे कोनो और ऑप्शन नय, एकटू अल्टरनेटिव तैरी होच्छे, एंड इट इज गोइंग टू बी देयर वेरी। एक रैडिकल शिफ्ट देखा हमने को इस बार, यंग कैंडिडेट्स आते हैं, दीपशिता धर, सृजन भट्टाचार्य, सुजन दा, सुजन चक्रवर्ती नहीं, वो यंग नहीं है पर वो अपने इज अ वेटरन, उन्होंने अपना जो
इतने दिन से जो उनका चुनाव क्षेत्र थे जादवपुर, Experience. वो छोड़ दिए, वो दमदम चले गए, जी। जादवपुर सृजन के लिए छोड़ दिए। जी। तो ये चेंज जो है, ये अगर 10-20 साल पहले लेफ्ट में आ जाता तो अच्छा होता। देखिए बिल्कुल अच्छा होता। देखिए अब तब्दीलियां लाने में समय लगता है। आई थिंक देव ऑल्सो गॉन ऑन एन इंट्रोस्पेक्शन स्प्री। उनने भी एक सोच विचार किया है और ओपिनियंस लिए हैं और सोचा कि अब रिवाइव कैसे करें, क्योंकि केरला में तो लेफ्ट बहुत मजबूत है, लेकिन बंगाल में बहुत मजबूत थी एक ज़माने में। और इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इट जस्ट काइंड ऑफ गॉट विदर्ड अवे। लेकिन अभी मौका है, जो फेसेस ला रहे हैं एंड जो चुनौतियाँ सामने हैं, तो लॉट ऑफ यंग एनर्जेटिक फेसेस हु आर इंस्पिरेशनल आल्सो, सो दैट आल्सो काउंट्स। वोटर्स काफी पोलराइज्ड हो चुका है। ये राजनीतिक महल, राजनीतिक जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि वोटर्स अभी पोलराइज्ड हो चुका है। यहाँ क्या आप अपना माइनॉरिटी कार्ड प्ले करिएगा जैसे भाजपा अपना सीए कार्ड प्ले कर रहे हैं? देखिए मैंने या आप यहाँ भी उन्नयन, प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये कार्ड प्ले करें? देखिए मैं कोई कार्ड प्ले नहीं कर रही, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। इफ आई एम अ सेकुलर पर्सन, आई एम अ सेकुलर पर्सन। तो मैंने कभी भी अपना माइनॉरिटी कार्ड प्ले नहीं किया है। पर हर जो कोई भी अपने आप को सेक्युलर बोलता है, भाजपा तो उन्हीं पे चढ़ जाते हैं, तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो एंटी नेशनल बना देते हैं। अगर भाई हम बोल रहे हैं जय हिंद, उसमें भी परेशानी है। हम जब कह रहे हैं, लेकिन हम नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम भाजपा के नीतियों को क्रिटिसाइज करना भैया हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो उसको हम लोग क्यों नहीं मान के चलेंगे, और क्यों नहीं हम लोग वो अधिकार को अपनाएंगे और उसका यूज़ करेंगे। क्या आपको लगता है भाजपा का जनमानस में फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व हुआ है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अभी देख लीजिए, कोई भी लोगों की जो नेशनलिटीज़ कैंसिल हो रही हैं, आप देख लीजिए ऑथर्स, आतिश तसीर बोल रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए, सडनली यू सी दे हैवंट रिसीव्ड द वीज़ा कैंसिल हो रहा है। भैया आपको प्रोफेसर्स, टीचर्स से इतना भय क्यों है, इतना डर क्यों है? वो ऐसा क्या बात करेंगे? दे आर इंटेलेक्चुअल्स, व्हाई यू स्कैर्ड ऑफ देम? तृणमूल का ये प्रॉब्लम नहीं है? तृणमूल का बंगाल में जो है एक you know, they are also in a way doing it, but यहाँ पे in a lot of ways they respect the public discourse on, you know, freedom of speech. मतलब तृणमूल कांग्रेस भाजपा से ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर सिटीजन? देखिए अभी मैं ऐसा कुछ बोलूंगी नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल की अभी तारीफ नहीं करूंगी। मैं this is very tricky. Only left. This is very tricky. So very tricky. So আমি এটাই বলবো that কোনো और alternative নয়, left is a progressive party to reckon with right now. This is what I ধরতে হাল ফিরবে লাল 2021 থেকে শুনছি। মানুষ সত্যি লালকে আসবে ফেরাবে? আসবে আসবে অবশ্যই আসবে। মানুষের সেই আস্থা আছে লালের উপর? অ্যাবসলিউটলি, মানুষের সাথে, মানুষের কাজের জন্যই তো আমি দাঁড়িয়েছি। আগামী দিনে আশা করব আপনার নির্বাচন ভালো হোক, আপনি অনেক ভালো করুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। উনি বলছেন লাল ফিরবে, লাল ফেরার জন্য ওনাকে কেউ যদি অ্যান্টি ন্যাশনাল বলে, লালকে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি কেউ বলে উনি মাইনরিটি কার্ড খেলছেন, উনি হাসতে হাসতে মেনে নেবেন। ওনার কাছে একটাই বক্তব্য, বিধানসভার বাই ইলেকশনে যে সায়রা শাহ হালিম, নিজেকে উনি সিলভার মেডেলিস্ট বলছেন, দ্বিতীয় স্থানে ছিল, লোকসভায় সেই সায়রা শাহ হালিম প্রথম স্থানে উঠে আসবে। আর ওনার দৃঢ় বিশ্বাস, দূরবীন নয়, এবার মানুষ ব্যালট বক্সে ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে ফিরিয়ে আনবে। তাই হবে কি বলবে সময়। ধন্যবাদ সায়রাজি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ এনকে টিভি পর্দায় আসা থাকার জন্য। আপনাদেরও দেখতে থাকবেন এনকে টিভি বাংলা। জয় হিন্দ।